We are discussing chapter 1, reproduction in organisms. In this chapter, right now, we have discussed types of reproduction. We have divided reproduction into two basic categories: asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction is a method by which a single parent gives rise to young ones or a offspring, and these offspring are genetically and morphologically identical to its parent. In protists and monera, which are unicellular organisms, asexual reproduction mainly takes place by cell division like binary fission. In yeast, asexual reproduction is carried out by a specific process called a budding, while many algae and fungi performs asexual reproduction by spores. Zoospores, which are flagellated motile spore capable of swimming, is common among many members of aquatic algae as well as fungi. In case of lower animals like sponge and hydra, they also perform asexual reproduction using gamules and birds respectively. I will say asexual reproduction is more common in unicellular organisms as well as in plants, but very rare in case of higher animals and mostly restricted to lower category of animals. Now, in this lecture, we will discuss asexual reproduction in plant, which is also referred as a vegetative reproduction. When we talk about asexual reproduction, we use term asexual reproduction in unicellular organisms or primitive animals. But when we say asexual reproduction in plants, normally we use a term called a vegetative reproduction or a vegetative propagation. Vegetative propagation is a synonym of asexual reproduction in plants. Plant perform vegetative reproduction very frequently in all groups almost. Even higher plants such as angiosperm show frequent asexual reproduction, and this asexual reproduction, also referred as a vegetative reproduction, is commonly used for a cultivation of a many commercial plant crop species and very important technique for a cultivation of a many plants. In this lecture, we will discuss some of the vegetative propagation methods mentioned in our textbook. We will start with a runner. Runner is a vegetative propagation method specially observed in a plant such as strawberry and some grasses. Runner, here a plant or a stem extension is produced. This stem extension is slender in nature, grow parallel to soil or a land, and when it come in contact with a soil, new daughter plant would be formed from the nodal region of a stem. चलो मैं आपको समझाता हूँ रनर क्या होता है। जैसे ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट है, तो स्ट्रॉबेरी के प्लांट में जस्ट अबाउट द सॉइल, थोड़े सॉइल से ऊपर की ओर स्टेम में से एक नया एक्सटेंशन निकलता है। तो एक स्लेंडर स्टेम स्ट्रक्चर ग्रो होता है, बराबर थिन स्टेम स्ट्रक्चर ग्रो होता है जो सॉइल को पैरेलली ग्रो होता है। अब ये जब स्टेम, देखो ये स्टेम है जिसको हम रनर कहूंगा मैं, जब ये स्टेम सॉइल का कांटेक्ट में आता है तो स्टेम के जो नोडल रीजन होता है, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है, उसमें से नया प्लांट फॉर्म होगा। अब ये पेरेंटियल प्लांट है, ये डॉटर प्लांट है। अब अगर ये रनर का कनेक्शन कट जाएगा तो दिस वुड बी अ सेपरेट इंडिपेंडेंट स्ट्रॉबेरी प्लांट। तो अगर ये रनर बीच में से अब कट जाएगा, फिजिकल डिस्टेंस इसका निकल जाएगा एक दूसरे से बीच में, तो अब ये एक्चुअली एक डॉटर प्लांट अब सेपरेट इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाएगा। तो runner is a common vegetative propagation method here, which is example of a stem modification, and it is observed in some grasses and plant like strawberry. हमारी टेक्स्ट बुक में इसका कोई डिटेल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ रनर वर्ड ही दिया हुआ है, लेकिन हमको फिर भी कंसेप्ट वाइज समझना इंपॉर्टेंट है कि रनर कैसे होते हैं। चलो दूसरा एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मेथड है, इसको बोलते हैं सकर। अगेन सकर का कोई डिस्क्रिप्शन तो नहीं है, लेकिन अगर इस फिगर का यूज करके हम सकर को आसानी से समझ सकते हैं।
Sucker is commonly found in banana. क्या होता है कि अंडरग्राउंड जो स्टेम होता है उसमें से एक्चुअली एक ब्रांच ग्रो होती है, वो एरियली अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो होती है, और अगर ये एक्चुअली बीच में से कट जाएगा तो बाद में इसमें से एक्चुअली नया प्लांट ग्रो हो सकता है, तो इसको सकर बोलते हैं, दैट इज कॉमनली फाउंड इन प्लांट लाइक बनाना। आई रिपीट कि ये अंडरग्राउंड स्टेम है, इसमें से अंडरग्राउंड स्टेम में से एडवेंटियस रूट के पास से एक ब्रांच ग्रो होती है और ये ऐसी एरियली ग्रो होती है, इसको सकर बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉमन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड इन प्लांट लाइक बनाना। चलिए राइजोम के बारे में बात करते हैं। राइजोम इज अ अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन ऑब्जर्व्ड इन plants such as a turmeric as well as the garlic, where fleshy stem grow parallel to land in underground manner. तो ये जो प्लांट्स है जैसे जिंजर है, गार्लिक है, इसमें फाइंड आउट होती है, बराबर, टर्मरिक है, सॉरी, गार्लिक और टर्मरिक में होता है, और अंडरग्राउंड फ्लेसी स्टेम होता है, वो जमीन के नीचे, सॉइल के नीचे पैरेलल टू सॉइल ग्रो होता है। देखिए हम टेक्स्ट बुक की फिगर का यूज करके अगर इसको समझे, बराबर, तो हम आसानी से समझ पाएंगे। बाद में मैं आपको एक्चुअली इसका बताऊंगा कि कैसे हम समझ सकते हैं राइजोम को। तो यहाँ पे क्या होता है कि अंडरग्राउंड जो स्टेम होता है ये फ्लेसी हो जाता है, फूड स्टोर करता है, इसके ऊपर एडवेंटियस रूट और नोड्स ग्रो होती है, बराबर, और अगर ये एक्चुअली कट हो जाता है अपने पेरेंटल प्लांट से तो ये सेपरेट प्लांट की तरह बाद में ग्रो कर सकता है। तो राइजोम इज अ कॉमन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड इन अ ginger as well as the turmeric. Okay, tuber is very common example of a vegetative propagation observed in potato. Here underground stem, जो stem underground होता है वो actually fleshy बन जाता है, इसको tuber बोलते हैं। इस tuber के अंदर नोचिस होते हैं जिसको हम आइस बोलते हैं, आइस के अंदर बर्ड्स होती है, इसको वेजिटेटिव बर्ड्स बोलते हैं। ये बर्ड जब एक्चुअली ग्रो होती है तो बाद में सेपरेट प्लांट की तरह सेपरेट हो जाने से सेपरेट प्लांट बन सकती है। तो जो हम खाने में यूज करते हैं ट्यूबर का, ये पोटैटो का ट्यूबर होता है। हमने काफी देखा होगा कि उसके अंदर एक्चुअली आइस पोट, हम जिसको वर्ड यूज करते हैं, तो खड्डे जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक्चुअली बर्ड्स ग्रो होती है। ये बर्ड एक्चुअली बाद में अगर सेपरेट हो जाती है तो नए प्लांट की तरह ग्रो हो सकती है। इस बर्ड्स को हम एक्सेलरी या तो एडवेंटियस बर्ड्स कह सकते हैं, और इट इज एग्जांपल ऑफ अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यूजिंग अ ट्यूबर। चलो ऑफसेट का एग्जांपल लेते हैं। इन केस ऑफ ऑफसेट, इट इज कॉमनली फाउंड इन अ aquatic weed called a water hyacinth. So water hyacinth shows a vegetative propagation structure called offset. Offset is very similar to runner. सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, देखो ये जैसे एक पेरेंटियल प्लांट है, ये वाटर हाइसेंथ का पेरेंटल प्लांट है जो वाटर सरफेस पे ग्रो होता है। अब उसके स्टेम में से एक थिक ब्रांच निकलती है जो वाटर सरफेस के पैरेलल ग्रो होती है, इसको ऑफसेट बोलते हैं। अगर इसको हम रनर से कंपेयर करें तो रनर में भी ऐसा ही होता है कि एक स्टेम में से स्लेंडर ब्रांच निकलती है जो एक्चुअली सॉइल को पैरेलल ग्रो होती है, लेकिन ये जो रनर का ब्रांच होता है ये थिन होता है, जबकि ऑफसेट का जो ब्रांच होता है ये थिक होता है, और इसके ऊपर ये रोजेटे ऑफ लीव्स होते हैं जिसको ये हम पेरेंटल प्लांट कहते हैं। तो ये पेरेंटल प्लांट में से किसी भी डायरेक्शन में ये ऑफसेट ग्रो हो सकता है। ये 360 डायरेक्शन में से किसी भी डायरेक्शन में ऑफसेट का जो ब्रांच है वो निकल सकता है, और उस पे एक्चुअली ये जो नोड्स होते हैं उस पे ये नया प्लांट ग्रो होने लगता है। ये डॉटर प्लांट है जिसपे ये अब लीव्स ग्रो होने लगे हैं, और उसमें से ये एडवेंटियस रूट ग्रो होने लगते हैं। एडवेंटियस रूट किसको कहते हैं? ऐसे रूट्स को कहते हैं कि जो प्राइमरी रूट में से नहीं निकलते, ऐसे रूट्स को एडवेंटियस रूट कहते हैं। जिसके स्टेम में से निकला हुआ रूट को या तो लीफ में से निकला हुआ रूट को एडवेंटियस रूट्स कहते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये ऑफसेट का पेरेंटल प्लांट है, उसके नीचे से, प्लांट के लीव्स के नीचे से नया स्टेम ब्रांच ग्रो होता है जो थिक होता है जिसको ऑफसेट कहते हैं, और उसके नोडल रीजन में से नया प्लांट ग्रो होने लगता है, नए लीव्स ग्रो होने लगता है। इसके भी यहाँ से नया अब एक थिक ऑफसेट निकलेगा और उस पे नया प्लांट बनेगा। तो this would grow into a new and new daughter plants. So it is very common in plant called water hyacinth. This water hyacinth is referred as a terror of Bengal because it is a invasive weed taken into India from foreign country
to decorate our water bodies. तो ये जो वाटर हायसिंथ है, इसको हम इन्वेजिव वीड कहते हैं। ये इंडिया में बाहर की कंट्री से लाया गया था, क्योंकि इंडिया की जो वाटर बॉडीज है, रिवर्स है, जो लेक है, उसको डेकोरेट करने के लिए, बिकॉज इसके लीव्स होते हैं, ये डेकोरेटिव लगते हैं, इसको लाया गया था। लेकिन soon we find out that actually it is a pollutant to our natural ecosystem. क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि ये रैपिडली ग्रो होता है और अल्टीमेटली पूरा जो वाटर बॉडी होता है ये वाटर हायसिंथ से कवर हो जाता है। बाद में जब इनकी डेथ होती है तो इससे ऑर्गेनिक कंटेंट एक्वेटिक सिस्टम में इंक्रीज होता है और अल्टीमेटली इट वुड लीड टू एक्चुअली हायर बीओडी एंड लोअर ऑक्सीजन कंटेंट। बराबर, इसको हम चैप्टर 13 में डिटेल में कवर करेंगे, इसलिए आप नहीं समझ सकोगे तो भी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इतना समझो कि वाटर हायसिंथ इज अ इन्वेजिव वीड। ये रैपिडली ग्रो होता है वाटर बॉडीज में, जैसे स्टैंडिंग वाटर में ये रैपिडली ग्रो होता है और अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इनटू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ अ वाटर हायसिंथ। और इससे जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो वाटर बॉडी का रैपिडली डिक्रीज हो जाता है। इट ड्रेन्स द ऑक्सीजन and that leads to actually death of many aquatic animals. और इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा गया था, क्योंकि ये जो बंगाल है, हमारा रीजन है, उसकी वाटर बॉडीज में इसको प्रोपोगेट करवाया था और अल्टीमेटली लीड टू अ वेरी वास्ट वाटर पॉल्यूशन इन अवर बंगाल वाटर बॉडीज, और इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा गया है। चलिए, तो ऑफसेट इज अ काइंड ऑफ अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फाउंड इन aquatic plants such as the water hyacinth, or offset is similar to runner, only difference is actually here the body is a thicker compared to that of actually, so branch is a thicker compared to that of actually the runner. चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज एक्चुअली द अनदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड इज फाइंड आउट इन द ब्रायोफाइलम। और ब्रायोफाइलम की जो मार्जिन्स होते हैं, इस पे नोचिस पे एक्सिलरी बड ग्रो होती है और ये एक्सिलरी बड अल्टीमेटली एडवेंटियस रूट ग्रो करती है और उसमें से नया डॉटर प्लांट ग्रो हो सकता है। तो ब्रायोफाइलम का यूज करके कल्टीवेटर ब्रायोफाइलम को रैपिडली ग्रो करवाते हैं। तो ये जो उसका लीफ होता है उसके मार्जिन्स पे से एक्सिलरी बर्ड्स ग्रो होती है, अल्टीमेटली उसमें से एडवेंटियस रूट ग्रो होते हैं और फिर ये एक्चुअली नए डॉटर प्लांट की तरह ग्रो हो सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जो वो बुलबिल है और या तो बल्बिल है। ये अगेव में पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो लीफ होता है उसके जो एक्सियल बड होती है वो फ्लेसी हो जाती है। अल्टीमेटली ये पेरेंटल प्लांट से सेपरेट होगी और फिर नया प्लांट की तरह ग्रो हो पाएगी। अगर इसको हम थोड़ा रीड करें तो इट इज a small bulb-like structure is formed in axil of a leaf or a stem, which grow in size, and when separated from parent it can grow as a independent plant. So these are the certain structures which are common in plants. We can summarize it as a runner that is observed in strawberry, then actually the sucker that is commonly found in a banana, rhizome which are found in turmeric as well as actually garlic, ginger, and tuber which is commonly found in potato, then offset found in a water hyacinth, bryophyllum propagate by leaf axillary margins, axillary bud, and bulbil or bulbil that is found in a agave. So all these structures are referred as a vegetative reproduction. Now that is a normal observation that vegetative reproduction or asexual reproduction is common in plants, even in higher plants, but asexual reproduction is very rare in higher animals, almost absent in higher animals. Some organisms like algae and fungi both show asexual and sexual reproduction. When condition is favorable, they show asexual reproduction, but when condition is unfavorable, hostile condition, then they switch to sexual reproduction. I repeat, organisms such as algae and fungi show both asexual and sexual reproduction. When condition is favorable, they reproduce by asexual meaning, but when condition is unfavorable, hostile, challenging, then they switch to sexual reproduction. So what is reason behind sexual reproduction under this unfavorable condition?
तो हम समझते हैं कि जो ये प्लांट होते हैं जैसे आल्गे और फंजाई जैसे प्लांट होते हैं, जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन में करते हैं, जबकि फेवरेबल कंडीशन में ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। लुक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सेल डिवीजन होता है मियोसिस। मियोसिस इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस कॉल्ड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। मियोसिस में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्रिएट होती है, और जेनेटिक वेरिएबिलिटी enables organism to fight against the unfavorable condition. जेनेटिक वेरिएबिलिटी से ये अपने में चेंज ला सकते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन में अडेप्ट हो सकते हैं, उससे फाइट कर सकते हैं, और इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉर्मली ऑब्जर्व्ड व्हेन इट इज अनफेवरेबल कंडीशन। तो मैं रिपीट करूं कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमेट फॉर्मेशन कॉमन होता है। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस नाम की प्रोसेस होती है। मियोसिस के दौरान जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के वक्त जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्रिएट होती है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी से ऑर्गेनिज्म अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस दे कैन अडेप्ट बेटर इन अ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट एंड फाइट अगेंस्ट द अनफेवरेबल कंडीशन। और इसीलिए जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली ऑब्जर्व होता है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तब एक्चुअली ऑर्गेनिज्म ज्यादा अच्छी तरह से जो ये हॉस्टाइल एनवायरनमेंट होता है उसमें अडेप्ट हो सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजंस व्हेन देयर इज अ अनफेवरेबल कंडीशन, ऑर्गेनिज्म चूज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर अ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बुक के फिगर्स को यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करें, चलिए, तो ये पोटैटो का ट्यूबर है, फ्लैशी, ये अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स फॉर्म होता है। उसके ये जो आई स्पॉट जिसको बोलते हैं, इस पे बर्ड्स ग्रो होती है। ये बर्ड्स जब सेपरेट हो जाती है तो इट कैन ग्रो एज अ सेपरेट प्लांट। तो हम इवन कॉमनली देखते हैं कि जब हम पोटैटो स्टोर करते हैं हमारे घर में, तभी भी इवन बर्ड्स ये आई स्पॉट पे ग्रो होने लगती है। ये एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं, और ये एक्चुअली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मीनिंग मेथड है, जिसमें नए प्लांट्स इससे एक्चुअली बन सकते हैं। चलो, ये अंडरग्राउंड राइजोम है, अंडरग्राउंड राइजोम है।